Hi guys, welcome to you in my YouTube channel. Today I will describe about the operator in Python, and before the starting of video I hope you that you will subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification of latest video. And now let's begin to start the operator. What is operator? Here is a first question. Then I tell you that operator are used to perform ऑपरेशन बिटवीन वेरिएबल एंड वैल्यू। ऑपरेटर क्या होता है कि वेरिएबल और वैल्यू के बीच में समथिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ हम लोग कैरेक्टर सिंबल इस टाइप का यूज करते हैं, जिसे यहाँ पे ऑपरेटर कहते हैं। तो इसे क्या है, कई कैटेगरियों में कैटेगराइज किया गया है। सो फॉर एग्जांपल हियर इज फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। हियर you can see here, this is the arithmetic operator used to perform the mathematical operation with numeric value. So for example addition, subtraction, division, multiplication and मान लो ऑपरेशन, जिस टाइप का जो ऑपरेशन होते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टी, ये सबको जो सिंबल यूज करते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू डिस्क्राइब द अर्थमेटिक ऑपरेटर। सपोज दैट हियर arithmetic operator. Suppose that here x equal to 2, y equal to 3 and z equal to x plus y, and print z x plus y equal to plus str z. Here x equal to 2 and y equal to 3 and z equal to x plus y. Here x plus y means plus symbol is used to having some operation between x and y, means additional operation. So a symbol plus is used for arithmetic operator here, plus symbol. So this is the addition of two value with the help of arithmetic operator plus symbol, and run this program. Okay, something यहाँ पे problems, and run again. Here x plus y equal to 5. So this is the example of arithmetic operator. You can also put here minus, multiplication, division and मान लो operator to use the different type of operator here and perform the different type of operation. So next one is here assignment operator. What is assignment operator? Assignment operator क्या होता है, यूज टू assign a value to variable. किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं उसे असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। इसमें इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू एंड डिवीजन इक्वल टू, मॉडलो इक्वल टू, इस टाइप के हमारे यहाँ पे सिंबल हो सकते हैं, जैसा कि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे देखिए समथिंग कुछ सिंबल दिए गए हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडलो इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं to assign something value to variable. So let's say an example to describe the assignment operator here. Assignment operator. Assignment operator. Suppose that here x equal to 2 and x equal to plus equal to 3, x equal to 2 and x plus equal to 3. It means here starting, in case of starting, स्टार्टिंग में हमारी दो x की वैल्यू है 2 है, बट हियर इज x प्लस इक्वल टू 3. इट मीन्स जो x की वैल्यू है उसमें हम प्लस 3 और ऐड कर रहे हैं, प्लस 3 और असाइन कर रहे हैं उस वैल्यू में। यह जो हमारा स्टार्टिंग में इक्वल के स्टार्टिंग में जो सिंबल है वह यह बताता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 3
इट मीन्स x की जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है उसमें 3 और ऐड करना है। तो इस टाइप के जो सिंबल्स अगर इक्वल के पहले यूज होते हैं, माइनस, प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या मॉडलो, वह क्या है, ये प्रदर्शित करता है कि उसके साथ हमारा कुछ ऑपरेशन है जो प्रीवियस वैल्यू के साथ एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन। दिस में भी आल्सो आप रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हियर आप आल्सो लिख सकते हैं x इक्वल टू x प्लस प्लस 3। okay, so this is the assignment operator here. So I will take the value of x here. Now run this to here x equal to 5. It means our value, previous value is 2, and x equal to see here x plus equal to 3. It means we assign a value to previous value in value of x. So here x equal to x plus 3. It means x means 2 plus 3. It means x की जो final value होगी वो 5 होगी. So this is the assignment operator. Here you can also use minus, division, multiplication model. It is for describe the assignment operator here. And now we will take next example, next operator here. Third is comparison operator. Comparison, what is comparison operator? This is the comparison operator here. Comparison operator used to compare between two values. कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करने के लिए यह यूज होता है ऑपरेटर। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एग्जैक्ट, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस आर इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, ETC समथिंग और भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑपरेटर होते हैं वह दो वैल्यू के बीच में दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। तो इन्हें हम बोल सकते हैं कंपैरिजन operator. So let's start to describe the comparison operator here. Comparison operator. So this is the comparison operator, and now we will take an example to compare something value. Suppose that here x equal to 5, y equal to 5, and here a condition, if condition, suppose that if x exact equal to y, x exact equal to y, then we can say in display x exact equal to y. In case else, in else case you can say that x not exact equal to y. So this is the example to describe the here comparison operator, and so run its x exact equal to y. It means here is x 5 and y 5. Then we can say that x exact equal to y. So here is many operators. For example, you can also operate with not equal to, and here greater equal to, less than, and lesser equal to, etc. also perform with this example here. So this is the example of compare operator. Okay. Also you can here, if we can take an example, x greater than y. Suppose that x equal to 10, here x greater than y, then you can display here x greater than y and x not greater than y. And run this.
x greater than y, it means x की वैल्यू क्या है, y से बड़ी है. So here we write here x greater than y. So this is the example of comparison operator here. And the next operator here logical operator. Fourth is here logical operator. What is a logical operator? Logical operator क्या होता है पाइथन में? तो here is logical operator used to combine two conditional statement. कोई दो कंडीशनल स्टेटमेंट को आपस में कंबाइन करके जो हमारा कंडीशन को चेक करते हैं, इस टाइप को जो ऑपरेटर यूज होते हैं उन्हें हम लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं. जैसे जहाँ पे अगर दो दो कंडीशन आ जाती है तो दोनों कंडीशन को एक साथ जो भी कंपेयर करने के लिए उसके बीच में जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं उसको लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं. इसमें एंड हो सकता है, और हो सकता है, etc. So here we can take an example to describe the logical operator. For example, here logical operator. Suppose that here our logical operator. So here suppose that x equal to 10 and suppose that x equal to 5 and erase here. If x greater than x less than 10, x की जो वैल्यू है वह 10 से छोटी है एंड x greater than 6. So it is the possible here x is less than 5. okay, here x की वैल्यू क्या है, लेस देन 10 है एंड x ग्रेटर देन 6, x की वैल्यू क्या है, 6 से बड़ी है, नो मीन्स हियर x की वैल्यू क्या है, 6 से बड़ी नहीं है. सो हियर सपोज दैट इफ हियर वी विल टेक 1, सो x ग्रेटर देन 1, ओके, x ग्रेटर देन 1 बट x लेस देन 10, x की वैल्यू क्या है, 10 से नीचे है. सो दिस इज द ट्रू कंडीशन इन दिस केस. हियर बोथ condition are true and solve with logical operator and इट मीन्स हियर जो हमारा कंडीशन है, यहाँ पे दो कंडीशन होता है कि हमारा जो x की वैल्यू है वो 10 से नीचे है एंड x की वैल्यू 1 से एबव है. तो यहाँ पे दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, एक साथ यहाँ पे दो कंडीशन चेक किए जा रहे हैं. तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है ऐसे सिचुएशन में यूज किए जाते हैं कि जब एक से अधिक कंडीशन को एक साथ कंपेयर किया जाता है या जो भी चेक किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट को, तो इन केस में लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे और भी हो सकता है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो वो कंडीशन ट्रू हो, इस टाइप के भी स्टेटमेंट आते हैं तो वहाँ पे हम और यूज करते हैं. तो दिस इज़ द कंडीशन. सो हियर आप यू कैन आल्सो लिखें, you can write here both condition, here some one are not true, some one are not true. अगर इसमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होता, सपोज दैट यहाँ पे 20 हो जाता है कि x की वैल्यू 20 से बड़ी है, तो इस केस में इल्स पार्ट एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता. तो वी कैन चेक दिस. हियर बोथ कंडीशन आर ट्रू एंड सॉल्व विथ लॉजिकल ऑपरेटर. सो दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर कंपेयर टू कंडीशनल स्टेटमेंट. हियर
So this is the logical. And the next one is बीट वाइज ऑपरेटर इन पाइथन। बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? बीट वाइज ऑपरेटर जो है यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर को जो कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, उस केस में हम लोग बीट वाइज ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके लिए जो सिंबल एंड और सिंबल एंड एक्स और एंड नॉट सिंबल, इस तरह के सिंबल हम लोग यूज करते हैं। प्राय बीट वाइज ऑपरेटर लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है कि ये क्या होता है, बस स्टार्टिंग से ही इग्नोर करते चले आते हैं बीट वाइज ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे कि बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो ये तो फाइनली आप लोग जान गए। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर, ये होता है बाइनरी नंबर को कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर डिस्क्राइब करना चाहूँगा। बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर। Suppose that let's suppose that here for example suppose that a equal to 60 and b equal to 30। here a equal to 60, अगर इसको हम बाइनरी नंबर में राइट करना चाहें तो कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हम कमेंट में इसको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 60 इक्वल टू क्या होगा हमारा बाइनरी नंबर में? इसे हम बाइनरी नंबर पेयर में जो राइट करेंगे 001 एंड 1100, यह हो गया हमारा 60। आल्सो हम 13 को बाइनरी नंबर में कैसे यहाँ पे राइट करेंगे? दिस इज द 13 इक्वल टू 0000 and 1101, and here also we apply a bitwise operator. Suppose that c equal to 0। अब इसको हम जो है c equal to 0 सपोज दैट थर्ड वैल्यू हियर। अब हम bitwise ऑपरेटर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। c equal to a and b हियर, एंड ये जो सिंबल है यहाँ पे एंड का, ये बीट वाइज ऑपरेटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू यहाँ पे जो है 12 होगी। लेकिन 12 होगी तो कैसे 12 आएगी वो हम आपको बताऊंगा यहाँ पे। इक्वल टू 000 एंड 1100। तो हम आपको बीट वाइज ऑपरेटर समझाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे कि बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो बीट वाइज ऑपरेटर क्या होता है कि जब हम बाइनरी नंबर को कंपेयर करते हैं, सपोज करिए हमारे पास बाइनरी नंबर 60 और 13 है, जिसको हम बाइनरी नंबर में यहाँ पे राइट किए हैं। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते समय हम जो है सेट वन इफ़ बोथ वैल्यू आर इक्वल, बोथ बीट आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम दोनों बीट को सीरियल से क्या है कंपेयर करेंगे। अगर दोनों बीट क्या है 1 होंगे तो उसकी जो वैल्यू सेट होगी, जो हमारा बीट वाइज ऑपरेटर के थ्रू जो वैल्यू सेट होगी वह क्या है 1 आएगा। यदि दोनों वैल्यू क्या है 0 होगी तो 0 आएगा। इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू को अगर यहाँ पे हम कंपेयर बाइनरी नंबर को कंपेयर करते हैं तो 0 और 0 को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 0 सेट करेंगे। फिर अगेंस्ट 0 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा। एंड अगेंस्ट 1 और 0 को भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी 0 ही सेट होगा। और यहाँ पे 1 और 0 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा। बट यहाँ पे जो है हमको मिल रहा है 1 और 1 को कंपेयर करने से हमको 1 मिलेगा, मतलब हमको 1 सेट होगा। बिट्स क्या है सेट 1 इफ़ बोथ आर 1 सेट देन 1, एंड हियर आल्सो 1 and 1 then we will get 1, and here 0 and 0 and but here is 0 we will get 0।
हियर 0 एंड 1, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो सेट क्या होगा, 0 सेट करेंगे। सो कहने का मतलब यह है कि अगर 1 1 हम दोनों में अगर कंपेरिजन करते समय हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं 1 मिलते हैं, तो बाइनरी नंबर जो यहाँ पे बिट्स में 1 मिलते हैं तो हमको क्या है, बिट्स में 1 मिलेगा। यदि 0 1 होते हैं तो 0 मिलेगा, यदि 0 0 होते हैं तो फिर उस केस में भी हमको 0 ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमको जो रिजल्ट यहाँ पे मिला, यह रिजल्ट मिला जिसकी वैल्यू जो होती है 12 आती है। तो इन दिस केस दिस इज द एग्जाम्पल टू कंपेयर द बीट वाइज ऑपरेटर। सो हियर वी विल प्रिंट दिस वैल्यू टू चेक दिस कि ये राइट है या रॉन्ग है, क्या वैल्यू आता है सी का। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू comma C. Now run this value. ओके, वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 12। तो हमें जो C की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो रही है वह क्या है, जो है यहाँ पे 12 प्राप्त हो रही है। ओके, वी कैन नॉट राइट हियर बिकॉज दिस इज द बाइनरी नंबर, सो दिस इज द दिस मे बी रिटन एज। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। यहाँ पे जो हमारी सी की वैल्यू है वह क्या है, 12 रिसीव हो रही है। कंपेयर करने से हमको जो बाइनरी बिट्स को कंपेयर करने से हमको इसकी वैल्यू क्या है, 12 रिसीव होगा है। बाइनरी बिट्स में यह आएगा और यहाँ पे वैल्यू 12 आएगा। 60 और 13 को कंपेयर करेंगे बीट वाइज के हेल्प से, तो ये बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके कंपेयर करेगा और इसकी वैल्यू क्या है, फिर हमको 12 रिसीव होगी। सो दिस इज द बीट वाइज ऑपरेटर। And in finally again we can say you that please subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification of latest video. Okay.